So I will request Ashish ji to come forward. Some of you were there yesterday and most of you were there yesterday. Some of you were there day before yesterday evening for the discussion with him. I would like to briefly introduce Ashish ji. So Ashish ji comes from a place called Jabalpur in Madhya Pradesh. I met him first in year 2013 in Adilabad. He comes with a background of, he has studied in regular education system, did his bachelor's, and then he went into microfinance where he was a CFO of one company, Chief Financial Officer, in a very senior position. And then in year 2009 he quit whatever he was doing to completely dedicate his life for understanding and promoting and documenting various social systems of our country. समाज व्यवस्था का जो विषय है, अर्थव्यवस्था का जो विषय है, economic systems, education systems, governance systems, village systems, jati systems. So last 25 years roughly of his whole life he has spent in learning these systems, and he was very lucky and fortunate to have spent almost 18-19 years of that along with Rabindra Sharma. That's what fortunate. So yeah, you can clap. He's clapping it for Guruji. Because you would have heard from all of us Dharampal ji ke baare mein, who's written books on various systems of India, and his students used to ask Dharampal ji that okay, you are writing, you have written 5 books, you have written Bharatiya Chittamanas Kal, so many places you have spoken about Bharat. Is there somewhere where we can go and see this? So he used to say, yes, you should go to Adilabad to learn from Rabindra Sharma. That was the simplicity and importance of Guru. So we are at a very important juncture of our existence as Vidya Kshetra. And if we all don't start talking and learning about sustainability, believe me, our children will not get it. And it's like, digging one side and then filling the other side. Yeah? It will not work. We will be disappointed, our children will be disappointed because they will see disconnection in what we are learning and what we are seeing in the society or in various environments. And hence it's very, very fundamental that we start also understanding how to integrate, our, what we say, Chitta, Manas and Kal, or Manasa, Vacha and Kaya. Our thinking processes, our words and our actions should all come together in a very integrated way. And this is a very, very important step in that direction. So I request Ashish, first we will light the lamp over there and then he will speak to all of us, followed by the sankalpa that some of the families will take. What that will mean, we will share also after this talk, and then we will all do the sankalpa. Thank you, Ashish. Thank you. मैच बॉक्स है? मैच बॉक्स है? हाँ नहीं ठीक है, इसमें अपन रखा है ना तो उसका यूज भी हो जाएगा कम से कम। तो ये हेलो, तो ये हम जहाँ लाइट लैंप करने वाले हैं, लैंप लाइट करने वाले हैं, ये कारीगर यंत्र है। जैसे बता रहे थे पुनीत जी कि कारीगर यंत्र गुरुजी, मतलब ऐसा कोई हमारे प्रिस्क्राइब शास्त्रों में नहीं है, बट रविंद्र शर्मा जी ने इसको इवॉल्व किया, विश्वकर्मा यंत्र के नाम से, कारीगर यंत्र के नाम से इसको किया। तो इसमें वहाँ आदिलाबाद में कलाश्रम में, जीविकाश्रम में और गुरुजी से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो अलग अलग काम चलते हैं, उन सारी जगहों पर
ये किसी भी काम को शुरुआत करने के पहले कारीगर यंत्र बनाते हैं, और ये कारीगर यंत्र में होता कुछ नहीं है, जो हमारी सभी तरह की कारीगरियां होती हैं, लोहारी है, सुनारी है, कुम्हारी है, बढ़ई है, तो लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, बांस का काम, लोहे का काम, जो 18 प्रमुख तरह की कारीगरी मानी गई हैं, उनमें से जितनी सारी चीज़ों के सामान हम यहाँ पर रख सकते हैं वो रख के डिस्प्ले करके और उससे हम यहाँ पे आरंभ करते हैं। तो हमारे वो रविंद्र शर्मा, ये एक सिंबॉलिक वो है, रविंद्र शर्मा जी बताते थे कि हमारे जितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार तो हम जानते ही हैं, बट वो कहते हैं कि 49 संस्कारों की हमारी पद्धति रही है, और इन सारे संस्कारों में सभी कारीगर की, जो 18 कारीगरों की हम बात कर रहे हैं मिनिमम, उसकी 1 से लेके 5 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो किसी की 1, किसी की 2, किसी की 4, किसी की 5 ऐसे, और ये सारी चीज़ें मार्केट जो हम कारीगरों का बात करते हैं, जिस जहाँ अभी प्रोडक्शन आर्टिसंस का बहुत सारे काम हो रहे हैं, अपने यहाँ भी स्टॉल्स लगे हैं, बेंगल्स वालों का है, कपड़े का काम है, मिट्टी का काम है, सबका। लेकिन आर्टिसंस में हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया पद्धति हुआ करती थी। मार्केट 2 क्लियरली सेग्रीगेटेड मार्केट थे, वैसे तो 4 कैटेगरीज थे कि क्या चीज़ बननी है उनकी, तो चारों भी बताता हूँ मैं। पहली चीज़ को वो बोलते थे ज़रूरत का सामान। ज़रूरत का सामान हमारा होता कितना है? बहुत कम होता है, बहुत कम। हमको किचन में कितनी ज़रूरत होती है? यदि बर्तन हमको चाहिए, कारीगरों के, किसानी की वाली अलग है जो हमारे डेली जो सामान आ रहा है, लेकिन कारीगरों के कितने सामान है? बर्तन आपने ले लिए एक बार तो ले लिए, आपको चूल्हे कढ़ाई ले ली तो वो ज़िंदगी भर चलती है, या बीच में बदल लिए तो आधी ज़िंदगी तो चलती है कम से कम आपकी। तवा है आपका, कितने दिन चलता है? गंजी है, भगोने हैं, वो कितने दिन चलते हैं? ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। ऐसे ही आपके बहुत से कारीगरी के सामान ज़रूरत के बहुत कम है, लेकिन इतनी कम ज़रूरत का सामान इस्तेमाल होगा तो कारीगर जिएंगे कैसे? तो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ मार्केट क्रिएट किया गया था, वो बिना ज़रूरत का मार्केट था हमारे सभी संस्कारों में। अब जैसे अभी भी कहीं पे भी अभी तक जो कुछ चल रही हैं, वो अंतिम संस्कार जो होता है, जैसे उदाहरण के लिए, बाकी तो आपको देखने कम मिलेगा, लेकिन अंतिम संस्कार में अभी भी देख सकते हैं आप। अंतिम संस्कार होता है तो सहज ही बांस का काम करने वालों के यहाँ से वो बांस आता है, मिट्टी का घड़ा सामने लेके चलते हैं, उसके ऊपर कपड़ा जो है नया डाला जाता है, जो भी 2 मीटर 3 मीटर कपड़ा नया डाला जाता है। फिर दर्जी के यहाँ से फूल आते हैं जो बन के दर्जी के, पंचरत्न उसके मुँह में डाला जाता है। तो ये इतने सभी तरह के कारीगर हो, चर्मकार लोग जो होते हैं वो एक तरह की रस्सी लेके आते थे जिससे उसको बांधा जाता था, और फिर वाद्य वाले लोग हैं वाद्य लेके आते थे, तेली के यहाँ से तेल आता था। तो हर तरह की जो चीज़ें हैं, हर तरह के कारीगर की 1 से लेके 5 चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बनता था, बिना जरूरत का मार्केट। यदि ये चीज़ें नहीं हो तो भी तो आप दाह संस्कार कर सकते हैं ना, वो बांस में ही ले जाना जरूरी है क्या? वो किसी दूसरी चीज़ में भी ले जा सकते हैं। सामने मटके रखना जरूरी है क्या? नहीं है। ऐसे आपके जितने संस्कार हैं, आप कोई भी पूजा करवाने जाते हैं पुरोहित के पास में से, तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट देते हैं, और लिस्ट में होता क्या है? 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1 मीटर पीला कपड़ा, 1 मीटर लाल कपड़ा, 4 मिट्टी के घड़े, दिए, नारियल इतना, ये यही सब सामान तो होता है, पंचरत्न, कपड़े, वस्त्र। तो ये सारे कार्य जब आज तो हम लोग लिस्ट लेके बाजार में चले जाते हैं, मिलता है, बट ये कभी किसी समय में हमारे कारीगरों के द्वारा ही बनी हुई चीज़ें हुआ करती थी। तो ऐसे बिना जरूरत का बहुत बड़ा मार्केट था। तो उसी तरह का ये हमारा सिंबॉलिक वो है कि एक तरह के संस्कार हैं जिसमें सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से आरंभ करेंगे। इसमें मिट्टी का सामान है, पत्थर का सामान है, पत्थर के कारीगरों का सामान है, लकड़ी का सामान है, पीतल का सामान है, चमड़े का सामान है, बांस का सामान है, हर तरह लोहे का सामान है। तो जितनी कारीगरियां रही, अरे आपकी आइए। जितनी तरह की कारीगरी सामान है उसका एक डिस्प्ले, और साथ में नवधान्य, क्योंकि किसान भी हमारे साथ में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये एक पद्धति रही हुई है। देखिए, गुरुजी की बात हम लोग शुरू करें उसके पहले ये 2-3 दिन अच्छा यहाँ पे चर्चा रही, अलग अलग समूहों के साथ हम लोग बैठे, बच्चों के साथ बात हुई 2 बार 3 बार, अभिभावकों के साथ में कुछ जो सिलेक्टेड अभिभावक थे उनके साथ में बात हुई, और आज ज़्यादातर लोग यहाँ पे उपस्थित हैं विद्या क्षेत्र से जुड़े हुए। एक दिन आचार्य शिक्षकों के साथ में बात हुई, आचार्यों के साथ में बात हुई। तो काफ़ी लंबे समय से ये चीज़, और उसके पहले भी हम लोग बात
मुनीत जी के साथ तो कर ही चुके थे, एक ऑनलाइन सेशन में हम लोग साथ में भी बातचीत हुई थी। तो आज जैसे मुनीत अन्ना बता रहे थे कि ये पूरी जो ग्राम व्यवस्था के दृष्टि से संक्रांति उत्सव मनाते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो चर्चाएं हुई, जिस पे अभी संकल्प भी करने वाले हैं हम लोग, तो ये जो 3-4 चीज़ें निकल के आई हैं वो ये निकल के आई है कि यदि हमको वृत्तियों के आधार से हायर एजुकेशन में कुछ हमको लेके जाना है, वृत्तियों के आधार पे बच्चों को तैयार करना है, तो ये एडहॉक वाला जो प्रोडक्शन सिस्टम है, एडहॉक वाला जो हम यहाँ पे काम कर पाएंगे, जो गुरु क्षेत्रों में, गुरुकुलों में, विद्या क्षेत्र में भी जिसमें इंक्लूडेड है, तो ये इसमें एक लिमिटेड टाइप का ही हमारा एक्सपोजर होगा। यदि हमको ये वृत्तियों के रूप में हायर एजुकेशन ऐसा हो कि वो लाइवलीहुड भी के रूप में बन सके उनके, तो फिर हमको इसका बड़ा भारी एक्सपोजर एक तरह से करना होगा। एक कुम्हार, जैसे कुम्हार की बात करें या लोहार की बात करें या सुनार की बात करें, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आना है, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, उसकी कॉस्टिंग कैसे होगी, रॉ मटेरियल्स के अलावा क्या क्या मैकेनिज्म मशीन होंगी, मिट्टी को कितने दिन पहले भिगाना है, किस चीज़ के लिए कितना करना है, फिर मिट्टी के अलावा जो रॉ मटेरियल है, आपको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, कंडे चाहिए हैं, ये किस पद्धति से होंगी, किल कैसे बनेगी, उसके टेम्परेचर्स के क्या क्या मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करने के। तो दिस एंटायर थिंग हैज़ टू बी टॉट। और इसके साथ साथ ये तो प्रोडक्शन वाली चीज़ हुई, पोस्ट प्रोडक्शन जो चीज़ें हैं वो सबसे, दैट विल मेक द लाइवलीहुड सस्टेनेबल। जब उन सारी चीज़ों को हम समाज में ले जा पाएंगे, बेच पाएंगे, दे पाएंगे, उसके बाद ही वो लाइवलीहुड के रूप में आएगा। अदरवाइज तो वो आपकी एक स्पेशलाइजेशन बन के रहेगा कि आप सीखे जानते हो। तो वो सारी चीज़ें सीखना है, तो हमको यहाँ जो सारे गुरुकुल जो होंगे और जिन वृत्तियों को हम यहाँ सिखाना चाहते हैं, खासकर लाइवलीहुड वाली जो वृत्तियाँ हैं, उसके लिए हमको ये पूरी तरह से प्रोडक्शन सेंटर के रूप में काम करना होगा। केवल हम 2 घंटे इसकी क्लास, 2 घंटे उसकी क्लास, उस तरह से यदि लेके जाएंगे तो ये उतने उस लेवल तक नहीं जा पाएगा जहां ये एक लाइवलीहुड का ऑप्शन बन सके उनके लिए। दे वुड नो अबाउट दिस, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। और ये उदाहरण के हम तौर पे हमने देखा है कि जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चर वहाँ 4 साल बैठ के बच्चे सीखते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कर पाने लायक हो जाते हैं? कर भी नहीं सकते, इस तरह की स्थिति रहती है। इसी तरह के बाकी सारी चीज़ों में भी कि आप पढ़ते हो 3 साल, 4 साल, 2 साल, जितना साल आप पढ़ना चाहें, लेकिन उस पर बेस लाइवलीहुड नहीं होगा, वो उसके बाद भी जाके नौकरी ही तलाश करेंगे। तो ये पहली चीज़ कि हम उस चीज़ को गुरुकुल यदि हम फुल फ्लेज उन ट्रेड्स में बनाना चाहते हैं, तो उन ट्रेड्स के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जैसा, प्रोडक्शन सेंटर जैसा हमको बनना पड़ेगा। और वो कंप्लीट उसमें कि उसको हम बिक्री भी करें, उसके फीडबैक भी लें, कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप भी रहें, तो ये एक उस तरह का माहौल होगा। और दूसरा, यदि ये हमको करना है, प्रोडक्शन सेंटर बनना है और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में, मार्केटिंग इश्यूज में नहीं फंसना है, तो देन वी नीड टू ग्रो दिस कम्युनिटी, दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज अ कम्युनिटी, कि जहां आपस में ही हम बहुत सारा सामान बिक सके, दिया जा सके, लिया जा सके, एक्सचेंज हो सके। तो ये पूरी पद्धति से, तो देख एक जो कल्पना आज सुबह मुनीत जी बात भी कर रहे थे कि विद्या ग्राम तरह की, एक हम गांव जैसी दिशा में बढ़ सकें, अपनी तरह का गांव, वो जो 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 उस तरह की मानसिकता वाले लोग, उस तरह की सोच वाले लोग एक साथ आए, तो एक गांव के रूप में हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम गांव की तरफ बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पे हमको क्लैरिटी होना जरूरी है कि गांव क्यों, सबसे पहले तो गांव या गांव जैसी व्यवस्थाएं क्यों, ये हमारे अंदर में, इट हैज़ टू बी वेरी फर्मली पोजिशन्ड इन आवरसेल्फ, अदरवाइज तो फिर वो मामला आधा रहेगा। तो गांव क्यों यदि देखते हैं, तो उसके लिए यदि हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि शहरों की स्थिति क्या है आज तो हमको पता चलता है कि गांव क्यों होना चाहिए। सही है नहीं बात? ये आज शहरों की स्थिति क्या, किसी भी जगह आज यहाँ पे आना जाना से लेके पॉल्यूशन की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, आपके पॉल्यूशन और जो इन्वायरमेंट की बात करें, हम उसको संबंधों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसी भी मामले में हम शहरों में किस लेवल पे हैं वो हमको समझ में आ रहा है। आज सारी जगहों पे, इन सारे फील्ड में दिक्कतें आ रही हैं। 4 लेयर्स पे हम लोग बात कर रहे थे कल कि व्यक्ति, सबसे पहला इकाई क्या है? व्यक्ति। उसके ऊपर इकाई कौन सी है?
परिवार, और उसके ऊपर समाज, और उसके ऊपर पूरी राष्ट्र और प्रकृति को भी, हम राष्ट्र को नहीं भी करें तो ये पूरा प्रकृति जो है। तो इन चारों लोगों को यदि हमको एक समान रूप से बेनिफिशियल देखना है तो हमको ग्राम लायक व्यवस्था में आना ही पड़ेगा। और क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि शहरों की स्थिति हम देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम थोड़ा ट्रस्ट अपने पूर्वजों के ऊपर कर सकते हैं कि हजारों लाखों सालों से, लाखों नहीं भी मानते तो 1000 साल तो हम मान ही सकते हैं, 2000 साल, कि 2000 साल से पूरे भारत की, हम भारतीय व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उस तरह की व्यवस्था में ट्रस्ट किया जो गांव के हिसाब थी, छोटी थी, मैनेजेबल थी, डिसेंट्रलाइज थी। ये शहरीकरण यदि देखा जाए तो ये कब का रिजल्ट है? ये पिछले 60-70 सालों में ही ज़्यादा हुआ है ना। आज़ादी के समय में हमारा 80-85% लोग, आज़ादी के टाइम तक भी रूरल एरियाज थे, 80-85%। आज जाके वो 60-65-70 पता नहीं कितना हो रहा है। तो 10-20 साल में ही जो अर्बनाइजेशन का जितना फास्ट ग्रोथ हुआ है कि 80-85, मतलब 15% से लेके 30%, 40% तक हम लोग अब अर्बन हो गए हैं, तो उसके इश्यूज हमको ऑटोमेटिकली दिखने लगे हैं। दिल्ली में अब हमारे 52 डिग्री टेम्परेचर था इस बार। ऑक्सीजन की और एयर क्वालिटी की क्या कंडीशन है वो देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली बस की बात है, वो सारे लोग सारी जगहों पे भी आ रहे हैं। तो ये एक चीज। दूसरी चीज, जो 85% हमारे उस समय विलेजेस थे और जो बाकी 15% शहर थे, उन शहरों का स्वरूप भी क्या था? वो भी अपने आप में बहुत हद तक, बेंगलुरु जैसे उस समय भी शहर था, हैदराबाद जैसे उस समय भी शहर था, लेकिन बेंगलुरु में अपने खुद के तालाब हुआ करते थे, पानी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते थे। जितनी सारी चीजें, बहुत सारी, खुद का उत्पादन, खुद का मतलब आसपास का ही उत्पादन हुआ करता था। तो दे वर नॉट प्योरली अर्बन सेंटर्स लाइक दिस डेज। उस समय भी उनका स्वरूप बड़े जरूर थे, लेकिन गांव के हिसाब का ही स्वरूप था उनका, कि जहाँ डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहे, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम रहे, और लोगों में संबंध हुआ करते थे। हम लोग अभी बात कर रहे थे, बेंगलुरु में जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बोले 40 साल पहले गांव हुआ करता था। विद्या जो उनका क्षेत्र, विद्यापीठ जो है पूर्ण प्रमति वाला, वो पूरा बोल रहे हैं उस समय पूरा गांव का इलाका था। 5,000-7,000 रुपये में उन्होंने जमीन ली हुई थी एकड़ के हिसाब से। तो और वो आज एकदम सेंट्रल दिल्ली टाइप का ही है, सेंट्रल बेंगलोर टाइप का ही है। तो इस तरह से इसको हमको देखना पड़ेगा कि गांव क्यों। और दूसरी चीज देखते हैं तो गांव में जो हम आज भी देख पा रहे हैं, जितनी सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो पॉल्यूशन की समस्या हो, आपसी संबंधों की समस्या हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सारी की सारी आपको बहुत हद तक अच्छी मिलेंगी गांव में। दूसरा, एक और चीज़, गांव में हम देखेंगे कि वहाँ ना आपको कोई वृद्धाश्रम मिलेगा, ना गौशालाएं मिलेंगी, ना आपको अभी बहुत सारी जगहों पे ये भी चालू हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, विधवाश्रम आपको नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी रोग और सारी दिक्कतें और सारी ज़रूरतें कहाँ की हैं? ये केवल शहर की। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम गांव क्यों बनना चाहते हैं। और जब गांव के ऊपर में आते हैं कि गांव हमको क्यों बनना है, क्यों, किस दृष्टि से बनना है, तो फिर उसकी कुछ इंट्रेंसिक क्वालिटीज़, ये तो नेगेटिव सेंस में देखना हुआ कि भाई यहाँ से सारा कुछ अच्छा है, यहाँ जो नहीं है वहाँ है, लेकिन उसकी कुछ इंट्रेंसिक क्वालिटीज़ जो हैं उसकी ओर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले भी मेरी बात हुई थी आप लोगों से, कुछ बीच में भी जो सत्रों में बात हुई, कि 4 प्रमुख चीज़ें हैं जो हमको एक फ्रेमवर्क के हिसाब से देखते हैं तो 4 प्रमुख चीज़ें दिखती हैं। वो है विज्ञान, कला, अध्यात्म और सामाजिक अर्थशास्त्र। और दूसरे फ्रेमवर्क से देखते हैं तो गांव में आहार की सुरक्षा, यानी रोजगार की सुरक्षा, आजीविका की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था, हर किसी के गौरव की व्यवस्था। ये 2 फ्रेमवर्क के हिसाब से अपन देखते हैं तो गांव उस मामले में जो एक समय में परिपूर्ण गांव हुआ करते थे, उसमें भी बहुत विकृतियां आई हैं। तो उनको भी हमको देखना पड़ेगा कि वो विकृतियां कहाँ से आई हैं, किस कारण से, किस तरह से हमारी सोच में आई है। तो उन दृष्टियों से छोड़ के देखते हैं तो ये 4-5 चीज़ों को देखते हैं: आहार की सुरक्षा, गौरव की व्यवस्था, विज्ञान, कला, अध्यात्म और सामाजिक अर्थशास्त्र। तो जिस हम ग्राम की कल्पना कर रहे हैं, आर्यग्राम की कल्पना कर रहे हैं, विद्या क्षेत्र कम्युनिटी की कल्पना कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे, ये एक बड़ी महत्व की चीज़ होगी, बहुत ही महत्व की चीज़ होगी। हमको ये बड़ा देखिए,
गांव में जैसे मैंने बताया आहार की सुरक्षा इतनी जबरदस्त, आहार मतलब आजीविका की सुरक्षा इतनी जबरदस्त थी कि कोई किसी के रोजगार पे कब्जा नहीं कर सकता था। जो लोहार है वो सुनार नहीं बन सकता था, सुनार है वो बढ़ई नहीं बन सकता था, बढ़ई है वो जुलाहा नहीं बन सकता था, और जुलाहा जो है बांस का काम करने वाला नहीं बन सकता था। इसका एक मतलब है कि बड़ा रिस्ट्रिक्टिव है चीज़ें, लेकिन दूसरी चीज़ यदि तरफ से देखते हैं तो उस छोटी सी व्यवस्था के कारण हर किसी के रोजगार की व्यवस्था की गई थी, इंश्योर कराया गया था। आज ये व्यवस्था घटते ही, कितने साल पहले घटी हो गई ये व्यवस्था टूटी है? हाँ, 20-30 साल पहले। और सम अदर एस्टिमेट्स 40 साल 50 साल मैक्सिमम यही है ना। बहुत सारे गांवों में अभी भी चल रही है, लेकिन बेंगलुरु जैसी जगहों में 60 साल 70 साल 100 साल मान लीजिए आप। ये पहला इसका शुरुआत हुई थी, कब हुई थी इसको आप जानते हैं? इसके पीछे भी अंग्रेजों का बहुत बड़ा, मतलब जो उनकी पॉलिसीज रही उसका बहुत बड़ा काम रहा है। क्या हुआ है, जब हमारी इस तरह की पद्धति थी तो कोई किसी के रोजगार पे कब्जा नहीं कर सकता था, नंबर 1। नंबर 2, दो कुम्हार भी आपस में कॉम्पीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भी टाइट मार्केट हुआ करता था, उनके भी बंधे हुए घर होते थे। इन घरों में ही वो सप्लाई करेगा, इन घरों में ही वो सब दूसरा वाला सप्लाई करेगा, तो उसमें भी क्लैश नहीं होता था कभी भी। ठीक उसी तरह जुलाहों का, ठीक उसी तरह से बांस का काम करने वालों का, चर्मकारों का, सबके घर बंधे हुआ करते थे। जब सबके घर बंधे हुए थे तो कोई, मैं यदि कंज्यूमर के रूप में हूं तो मैं अपने ही कुम्हार से, लोहार से, बढ़ई से, नाई से सामान ले सकता था, किसी दूसरे से नहीं। तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव उस सेंस में था कि आपकी एक रिलेशनशिप बनी हुई है। जब इतना रिस्ट्रिक्टिव, इतना टाइट अप था, तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो वहां से ब्रिटेन के प्रोडक्ट आए तो वो कोई खरीदता ही नहीं था, क्योंकि आप अपने ही कुम्हार से खरीदोगे वो चीजें, कोई और अपने ही जुलाई से खरीदोगे, तो कोई और बना रहा है तो भी खरीदता नहीं था। तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस उन लोगों को दिखी। तो फिर उन्होंने बकायदा इसके लिए एक एक्ट पास किया कि ये बड़ा ही रिग्रेसिव टाइप का चीज है आप लोगों का, आप कहीं जा नहीं सकते, ओपन मार्केट नहीं है, बहुत ही क्लोज इकोनॉमी है आप लोगों की, किसी से आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं, आपको कोई चॉइसेस नहीं है, फ्रीडम नहीं है। इस तरह से पोज करके ये डिमांड, ये उन्होंने एक्ट पास किया कि आज से आप अपना सामान कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, और आज से आप अपना सामान किसी से भी खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। समझ में आई बात ना? तो इतना आप बंधे हुए हो, अब आप स्वतंत्र हो गए हो। और ये स्वतंत्रता मिलते हुए अभी मुश्किल से 100 साल 150 साल हुई है हमको, जो सो कॉल्ड स्वतंत्रता। और उसके कारण हो क्या रहा है, हमारी यूथ में यदि आप देख लें या नए बच्चों को देख लें, पूरे तरफ से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा होकर रह गया। विद इन 100-150 ईयर्स अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम लाइक एनीथिंग, सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जिसको बोला जाए, आज वो समस्या होगी। और उसके पीछे का देखा जाए तो केवल और केवल ये एकमात्र छोटी सी चीज थी। जब ये नहीं हुआ करता था तो घर में किसी को रोजगार की चिंता नहीं होती, गांव में किसी को रोजगार की चिंता नहीं होती थी कि मैं बड़ा होकर क्या करूंगा। आज हम 5 साल 7 साल का होते हुए ही हमारी चिंता शुरू हो जाती है, अपनी खुद बच्चों की तो होती ही होती है, पेरेंट्स की और पूरे समाज की होने लगती है कि बड़े होकर तुम क्या करोगे, बड़े होकर तुम क्या करोगे, बड़े होकर तुम क्या करोगे। तो ये इतना जबरदस्त, उसमें से 2-4-10 लोग सेटल हो भी जाते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल, कितने लोग आज हम, यदि ये बेरोजगारी रियल नहीं होती तो इतने बड़े मुद्दे नहीं होते ना। इलेक्शंस में लोग बाग ये सारी चीजों को उद्यम में उठा रहे हैं। आपको बेरोजगारी भत्ता मिलने लगा है अभी तो, महाराष्ट्र सरकार आई थिंक इज गिविंग दैट ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस 10,000 रुपये कुछ उनको साल का, या पता नहीं 5,000 रुपये महीने का, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि केवल 100-150 साल में, केवल 100-150 साल में हम इस स्थिति में पहुंच गए। तो इफ वी हैव टू रिवर्स दिस, हमको उस तरह की पद्धतियों में आना पड़ेगा कि हम कैसे क्लोज इकोनॉमी के रूप में काम कर सकते हैं। तो आहार की सुरक्षा और उसी के साथ साथ सभी के मान की व्यवस्था हुआ करती थी। अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग तीज त्योहारों में, संस्कारों में, जैसे मैं सब आप बात कर रहा हूँ ना, ये संस्कार सामान बिना जरूरत का मार्केट, जैसे मैंने बात की आपको कि ये एक तरह से आपकी सामान तो बिक्री करते ही थे, लेकिन दूसरी तरह से एक अलग तरह के मान की व्यवस्था भी होती थी। आप ये सोचो कि किसी का दाह संस्कार रुक जाता था 2 घंटे 4 घंटे तक यदि बांस वाले के यहां से सामान नहीं आए तो। बिना उसके भी हो सकता है, बट समाज में इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था कि वो मटका यदि नहीं आएगा कुम्हार के यहां से, जुलाहे के यहां से कपड़ा नहीं आएगा, किसी के यहां से कुछ नहीं होगा, तो वो काम ही रुक जाएगा। उससे बड़ा आप अर्जेंसी, आइडेंटिटी क्या क्रिएट कर सकते हैं किसी की? आप समझ पा रहे बात को? क्योंकि ये इतना बड़ा मान होता था, यदि कोई चीज नहीं हो पा रहा है वहां पे, हम आप लोगों ने शादी विवाह में देखा होगा,
अभी भी अब जो रिलेटिव्स के साथ में बड़ा हो गया, एटलीस्ट सेंट्रल इंडिया में तो हम लोग देखते हैं अपने घरों के आसपास में कि लड़की की मांग जो भरना है वो किसी एक बुआ का ही काम है, भाभी का ही काम है। बिछुए जो पहनाए जाते हैं लड़की को शादी के समय में वो बुआ ही पहनाती है। ऐसे अलग अलग उसके रोल्स डिवाइडेड हैं। उसके कारण हम उन सारे रिलेशंस को बचा के रखते हैं, उनसे संबंध बना के रखते हैं, क्योंकि यदि वो नहीं होगी तो उस दिन मांग कौन भरेगा, ये वाली बात जो अभी जैसे गीतों में चल रहा था ना, बच्ची जाएगी शादी में तो कैसे कैसे क्या करेगी, क्या क्या करना है। तो घरों में मजाकों में यही होता था कि यार बुआ से संबंध बना के रख, तेरी मांग कौन भरेगा या बिछुआ कौन पहनाएगा, भाभी से इतना लड़के रहेगी तो कैसे चलेगा तो ये मजाकों में ये सारी चीज़ होती थी, लेकिन उसके कारण उनका मान होता था। फूफा का मान होता था, मामा का मान होता था, अलग अलग जगहों पे उसका उनकी नेसेसिटी रहती थी। आज हमारी सोसाइटी में बड़ा से बड़ा आदमी बन जाए, आईएएस ऑफिसर भी हो, ये भी हो, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद जब तक अपनी पोजीशंस में रहता है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपने उसमें जाते हैं देयर इज नो रोल फॉर हिम। आइडेंटिटी पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है। अच्छे से बड़ा इस कंपनी में मालिक होगा, ये होगा, जैसे आपको बता रहे सीएफओ का, मैं होऊंगा सीएफओ कहीं का लेकिन घर में कोई वैल्यू नहीं है, घर और परिवार में, क्योंकि हम उस लायक ही नहीं रहते। उन सारे लोगों से हमने संबंध जोड़ लिया है। तो ये होता है कि यार फूफा की जरूरत भी है तो चलो ये वाले फूफा तो बिजी रहते हैं, दूसरे फूफा से काम कर लो। तो नोबडी कीप्स सॉर्ट ऑफ दिस थिंग विद यू। तो ये बहुत उसी तरह से ये कारीगरों का मान हुआ करता। इंस्टीट्यूशनलाइज मान तो होता ही था कि हम इस मौके पे ये करना, दशहरे पे बहुत सारे लोगों का मान किया जाता था, मकर संक्रांति में बहुत सारे लोगों का मान होता था, अलग अलग तीज त्योहारों में संस्कारों में, जैसे कर्ण छेदन संस्कार है तो उसमें सुनारों का विशेष मान होता था। यदि कान छिदवाने जाएंगे आप बाजार में, कितना पैसा लगेगा? सबसे आसान काम है ना, 10 रुपये 100 रुपये लेगा, 500 रुपये लेगा, कितना कुछ लेगा ना आज के हिसाब से। लेकिन जब आप कर्ण छेदन करवाते हैं संस्कार के रूप में, तो उसको बिठा के उसको, जब वो आपका सुनार आता है वो अपने साथ में बाली भी लेके आता है, आपको उसका मान करता है, उसको पहले टीका लगाते हैं, बैठाते हैं, उसको मान करते हैं, और फिर उसके बाद उसको ये सारी चीज़ें, केश खंडन जो कार्यक्रम होता है, मुंडन जो कार्यक्रम होता है, मुंडन कार्यक्रम में नाई को कितना है, मतलब कटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, मुंडन करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, उस तरह ही फेरना है। तो वो आप समझ लगिए, उसकी मेहनताना के रूप में देखेंगे तो उसको बहुत कम में वो काम कर सकता है, लेकिन उसके बदले हम उसको कपड़े देते हैं, सीधा देते हैं, द्रव्य मतलब पैसे देते हैं। फिर कुछ कुछ जगहों पे तो बकायदा वो हक से, जो बड़े बड़े घरों रहते हैं और सब रहते हैं, तो बकायदा हक से वो तो सोने चांदी की चीज़ें भी मांगते हैं और देना भी पड़ता है, दोनों चीज़ होती है। तो ये मान इस तरह से बहुत अच्छे से बिल्ड इन किए गए थे। तो जब हम सोच रहे हैं आगे ये चीज़ें लेके जाने के लिए, तो इन 2-3 चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें सुनिश्चित कर सकते हैं। विज्ञान, कला, अध्यात्म, ये सारी चीज़ों के ऊपर तो थोड़ी बहुत बात हुई है। आज भी आप लोग देख पाएंगे जैसे कला के क्षेत्र में कितने तरह के गीत। हमारे यहाँ पे कला के 2 फॉर्म हैं, एक तो परफॉर्मिंग आर्ट और एक नॉन परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या आता है? गीत, संगीत, नाटक, नृत्य, यही सारी चीज़ आते हैं। नॉन परफॉर्मिंग में चित्रकारी, स्कल्पचर, ये इस तरह के जितने सारे चीज़ें वो आते हैं। पेंटिंग है, रंगना है, रंगाई है, ये सारे आते हैं। इन दोनों तरह की चीज़ों के लिए हमारे बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था रही है, बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था रही है। सुबह 3-4 बजे से लेके भिक्षावृत्ति वाले लोग आते हैं, जैसे अभी वो दसैया के बारे में एक गाना बच्चों ने प्रस्तुत किया था ना, जो दिया जलाने आते हैं, तो ऐसे सुबह 3-4 बजे से लेके आने वाले शुरू होते थे, जो आपके घरों घरों में जाके गाना गा रहे हैं, उठाने का काम कर रहे हैं, फिर आपके अलग अलग अवसरों पे अलग अलग तरह के गाना जा रहे हैं। तो हरिदास लोग आते थे, जंगम लोग आते थे, बाल संतलू जैसे लोग आते थे, बुड़बकुलू आते थे। इस साउथ के में हमारे यहाँ पे जो उनको वसुदेवा करके बात करते हैं, वसुदेवा लोग आया करते थे। तो ऐसे बहुत तरह के लोग आते थे, और ये सुबह 3-4 बजे से लेके 7-8 बजे तक का इनका चलता रहता था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और सारे लोगों के अपने सबके वाद्य यंत्र अलग अलग होते थे। जो बुजुर्ग लोग होंगे आप लोग उसको रिलेट कर पा रहे होंगे, देखा होगा आप लोगों ने। और सबके वाद्य यंत्र अलग होते थे, ये नहीं कि 2-4 ही चीज़ें लेके आ गए। कोई बुड़बकुलू का नाम ही बुड़बक्का के नाम से होता था, जो कि एक डमरू तरह का होता था। वो देखिए वो आंटी बता रही है वहाँ पे कि वो डमरू लेके बहुत ही, और उस डमरू की आवाज़ बड़ी तीखी होती थी, क्योंकि उसमें खरगोश का चमड़ा चढ़ता था, ऐसा बोलते हैं। तो उसका वाद्य अलग होता था। फिर जंगम लोग आते थे तो उसका वाद्य अलग होता था। फिर बाल संतुड़ू आते हैं तो उसका वाद्य अलग होता था। हरिदास लोग आते थे तो अपना अलग
तानपुरा लेके सब लेके आते थे। तो हर तरह, फिर उसके बाद 8-9 बजे के बाद से दुनिया भर के मनोरंजन करने वाले जितने लोग होते थे वो आते थे। कोई बंदर को लेके आ रहा है, कोई भालू को लेके आ रहा है, कोई सांप को लेके आ रहा है, कोई नट है, कोई सरकत दिखाने वाला लोग हैं, कोई जादू दिखाने वाले लोग हैं। ऐसे दुनिया भर के लोग आपके 9 बजे से लेके जो बचे रह जाते थे काम धंधे पे, कारीगर लोग रहते थे, बच्चे रहते थे, बुजुर्ग रहते थे, बाकी खेती किसानी में जो निकल गए, काम धंधे में निकल गए, तो उन सब का मनोरंजन करने के लिए यहाँ लोग आते थे। और शाम होते ही भोजन होने के बाद फिर ये जाति पुराण वाले हैं, यक्षगान वाले हैं, ये सारे दुनिया भर के लोग आते थे और रात रात तक इनके परफॉर्मेंस चलते रहते थे। तो मैं बता रहा था इन लोगों की सुबह 3 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक परफॉर्मेंस चलते थे कि सुबह 3 बजे, और ये लंबी 8-8 10-10 दिन कथाएं सुनाने वाले लोग हुआ करते थे। तो पूरा का पूरा माहौल आपका संगीतमय हुआ करता था, गीतमय होता था, कला इतनी ज्यादा थी। फिर आपके हर छोटे छोटे से कार्यक्रम, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, हर छोटे छोटे से कार्यक्रम में बकायदा उसको एक जगह को साफ सुथरा करके उसमें डेकोरेशन, एक पार्थिव शिल्प करके हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज होती है। पार्थिव शिल्प और पार्थिव कला क्या होती है? पार्थिव शिल्प जो कुछ समय के लिए की जाती है, फिर उसके बाद डिसमेंटल कर दी जाती है। कि हमने रंगोली डाली और फिर उसके बाद पूजा हुई तो खत्म। उसके बाद रंगोली का फिर उसका कोई महत्व होता है क्या? ये हमने डेकोरेशन किया कुछ देर के लिए और फिर उसके बाद फिर खत्म कर दिया। तो हमारे गणेश जो 10 दिन के लिए गणेश रखे जाते हैं, संक्रांति पे ये होता है। फिर युगादि के समय में हम लोग युगादि के समय में करते हैं, दुर्गा पूजा है, महालक्ष्मी है, महागौरी है, गजलक्ष्मी है, ऐसे बहुत तरह की पूजाएं होती हैं जहाँ एक दिन के लिए हम बहुत अच्छा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं, समाते हैं, सब श्रृंगार करते हैं और फिर 3 दिन के बाद उसको विसर्जन कर देते हैं, 2 दिन के बाद विसर्जन कर देते हैं, 1 दिन के बाद विसर्जन कर देते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें करना है, लेकिन फिर उससे मोह नहीं होना है, उसमें उसको विसर्जित कर देना है। तो आपको एक दृष्टि एक लेवल पे आपको वो कला सिखाती है और दूसरे लेवल पे आपको अपरिग्रह सिखाती है, डिटैचमेंट सिखाती है। तो ऐसे बहुत तरह के पद्धतियां हमारे यहाँ पे रहे हैं। तो जब हम कलाग्राम की, हम अपने ग्राम की यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं, तो इन सारे फेसेट्स को भी हमको देखना होगा। ये बड़ा महत्व की चीज़ है। सबसे पहली चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वैसे जो हम लोग जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, और अदरवाइज भी आज के समय में भी यदि देखा जाए तो उसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करके रखें। इन 4 चीज़ों में विज्ञान, कला, अध्यात्म और अर्थशास्त्र, आज सबसे इग्नोर्ड एस्पेक्ट क्या है? हाँ बताओ, और बताओ। कला है, विज्ञान है, या अर्थशास्त्र है, या अध्यात्म है? हाँ, अध्यात्म तो आउटकम है। यदि आपकी विज्ञान सही है, आज मैं कल परसों ही बात कर रहे थे कि आज हम लोग जिसको बोल रहे हैं, आज पूरा साइंस का एज बोलते हैं ना, ये आज वैज्ञानिक युग है, पूरा चल रहे हैं। लेकिन इस पूरे वैज्ञानिक युग में सबसे अवैज्ञानिक ढंग से हम लोग रह रहे हैं। ये लगता है आप लोगों को? नहीं लगता है? किस तरह के बर्तनों में हमको खाना खाना चाहिए हमको पता ही नहीं है। तांबे के बर्तन किस लिए होते हैं, पीतल के बर्तन किस लिए होते हैं, कांसे के बर्तन किस लिए होते हैं, कसकुट किस लिए होते हैं, मिट्टी के बर्तन किस लिए होते हैं, लोहे के बर्तन किस लिए होते हैं। आज सब जगह स्टील, क्रॉकरी, यही सब चीज चल रहा है, और ऊपर से और नॉन स्टिक। फिर उसके बाद तो ये इन सारे धातुओं का, इन सारी चीजों का कभी वैज्ञानिक पक्ष था ना? ऐसे तो लोगों ने डिसाइड किया होगा कि कांसे के बर्तन में खाना चाहिए। दे वुड हैव अराइव्ड एट इट फॉर सर्टेन रीजन। आज हमको पता है, हम सो कॉल्ड साइंटिफिक एज में है, हमको मालूम है कि क्या क्या चीज किस चीज से क्या होता है, बट स्टिल वी आर ऑल ईटिंग इन स्टील प्लेट्स और क्रॉकरीज। ये नहीं है। हमको किस समय किस चीज में खाना है, समय का भी कोई ध्यान नहीं है। कितने बजे उठना है, उठने से उसके साइंटिफिक रीजंस क्या है, किस ऋतु में कौन सी चीज़ खाना है। आज बेंगलोर से लेकर बाकी सारी जगहों पे धीरे धीरे सब जगह होता जा रहा है, हमको हर तरह, हर सीजन में हर तरफ की सब्जी मिल रही है। उसका कोई सीजनल एस्पेक्ट नहीं रह गया आजकल। हमको जो खाना है वो सब कुछ मिल रहा है। एंड वी आर लिविंग इन साइंसेस। सोचिए आप, किस मौसम में क्या सब्जी खाने से कैसा हमारा वो होना चाहिए, इसके दिस ऑल साइंस ओनली ना। आयुर्वेद पूरा साइंस चीज है कि नहीं? आयुर्वेद तो एक आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बच्चों के साथ हम लोग बात कर रहे थे कि सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गर्म होना चाहिए। आज जिस तरह के घर हम लोग बन में रह रहे हैं साइंटिफिक एज में, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया। सिर हमारा ठंडा रहता है, मतलब गर्म रहता है,
और पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। मुझे मोजे पहनने पड़ रहे हैं यहाँ पे क्यों? क्योंकि हमने इस तरह की चीजें बना रखी हैं। आपके घरों में यदि आपने गोबर के उससे देखे हो कभी, मिट्टी के गोबर का, सबसे कुचालक सामग्री जो है लकड़ी और मिट्टी होती है। कुचालक इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट। आज हम सारी जगहों पे इन सारी चीजों को निकाल चुके हैं, नहीं तो ये अपने आप में चीजें जो आपको गर्म कर सकती हैं, जो पैर आपको गर्म, अब ये जो है ये आप उस दिन बता रहे थे मार्बल लगा हुआ है, ये टाइल्स लगी हुई है, ये गर्मी में गर्म करते हैं और ठंडी में ठंडे करते हैं। होता नहीं होता ऐसा? हर मतलब अब इसको किस तरह का साइंस बोलेंगे हम, बताइए? ये बेसिक नॉलेज है जबकि ये कि क्या गर्म किस मौसम में क्या गर्म करता है, क्या ठंडा करता है। वी नो दिस वेरी बेसिकली। तो गर्मी के समय में आपको ठंडा करने वाली चीजें होनी चाहिए, ठंडी के समय में आपको गर्मी करने वाली चीजें होनी चाहिए। हीट का जितना ज्यादा हम बेड कंडक्टर चीज लेके रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी है, लाइम है, लकड़ी है, बांस है, ये वो सारी चीजें आपको कम करेंगे कि आपको दीवार बाहर गर्म भी है तो दीवार आपकी उस तरह की बना रखी है कि अंदर हीट नहीं आ पाए, या बाहर ठंडा है तो अपनी दीवार इस तरह की बेड कंडक्टर वाली बना रखी है कि वो अंदर हीट, उसकी कोल्डनेस उसके अंदर ना आ पाए। बट सारी जगहों पे पूरा, अब आप रेलवे स्टेशन वगैरह में चले जाओ, अभी तो मुझे बहुत सारे आर्किटेक्ट वाले लोग बताते हैं कि अभी एक कॉन्सेप्ट है हॉस्टाइल आर्किटेक्चर करके एक कॉन्सेप्ट है। डू यू नो दिस और नॉट? कि जहां अच्छा बताया था कि मैं, हाँ तो अभी लोग ने तो बताया था, वो याद दिलाया था एग्जैक्टली। हाँ, सारी जगहों पे स्टील बेंचेस हैं, इस तरह की चीजें कि ये आपको पूरी तरह से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सारी जगहों पे आप देखो जिस तरह की चीजें बन रही हैं, वहां बैठ नहीं सकता आदमी कुछ समय में। ठंड के समय स्टेनलेस स्टील की चीजें स्टील से भी ज्यादा ठंडी करती हैं ठंड के समय में, और गर्मी के समय गर्म करती है रेलवे स्टेशन वगैरह में जी, पार्क वगैरह में सारी चीज हो रही है, आदमी बैठते ही चिक जाता है। जैसे स्कूटी की सीट, पता नहीं आप लोगों के इलाके में, तो बेंगलुरु तो अच्छा है उस मामले में कि उतना गर्म नहीं होता है, बट थोड़ा सा आप उस तरफ महाराष्ट्र अपवर्ड जाइए, इतना गर्म होता है चीजें कि बस पूछिए मत आप। तो विज्ञान एक बहुत इसेंशियल चीज कभी रहा करती है, लेकिन आज हम पूरी तरह से अवैज्ञानिक हो गए हैं। कला के बारे में तो बताया कि ये सारी चीजें छूटती जा रही हैं। अध्यात्म तो आउटकम है इन सब चीजों का कि हम आध्यात्मिक जीवन शैली, यदि हम वैज्ञानिक ढंग से जिएंगे, कलात्मक ढंग से जिएंगे, सामाजिक ढंग से जिएंगे, तो अपने आप आध्यात्मिक होंगे। अध्यात्म ये बैठ के 2 घंटे अलग से जप माला करने की चीज तो नहीं है ना। आप भाई साहब हैं अभी कुमार साहब जी, वो हथकरघे पे बिना आप ध्यान लगाए आप काम कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? वो आपको कंसंट्रेशन तो बेसिक नंबर की चीज पहले नंबर पे आएगी चीज। तो ये सारी चीजें अपने आप होने वाली चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा मिसप्लेस जो है अभी आज के जमाने में वो है इकोनॉमिक्स। सबसे ज्यादा मिसप्लेस्ड। हम यदि आज किसी भी चीज की बात करें तो इकोनॉमिक्स किसी भी चीज को एकदम उल्टा से उल्टा करने के लिए है, जिस तरह की इकोनॉमिक्स आजकल चल रही है। तो आई वुड मतलब हमको ध्यान, और आप लोग कोर्स कर भी रहे हैं, उसी से बिगिन भी कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम लोग नहीं देखेंगे तो ये बहुत ही अलग तरह से जा सकता है। कुछ उदाहरण देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। आज भारतीय कृषि के नाम पे बहुत प्रयोग हो रहे हैं ना, जिसमें भारत की कृषि, भारतीय पद्धति, भारतीय ये सारी चीजें, और क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कोई जैविक फार्मिंग बोल रहा है, कोई नेचुरल फार्मिंग बोल रहा है, कोई ऋषि फार्मिंग बोल रहा है, कोई समअदर जीरो बजट फार्मिंग बोल रहा है। इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं, इतनी सारी पद्धतियां हो रही हैं, लेकिन उसमें देख के लगता है कि केवल वो बहुत साइंटिफिक चीजों पे प्रयोग हो रहे हैं। उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसका कला वाला एस्पेक्ट पे कोई बात होती दिखती है कहीं? क्या कोई बात होती नहीं दिखेगी आपको। और उसका रिजल्ट ये है कि जिस भारत देश में अनाज बेचना पाप माना जाता रहा, वहां हम इन सारी चीजों को प्रीमियम पे बेच रहे हैं। एक कदम और आगे जा रहे हैं। एक तो बिकना ही गड़बड़ है, और फिर उसके बाद उसको प्रीमियम पे बेचना। बाहर की चीजें यदि 10 रुपए किलो है तो ये हम 15 रुपए की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक है भाई, महंगा तो होगा, जीरो बजट से आया इसलिए महंगा तो होगा। यू कैन इमेजिन दैट जीरो बजट है लेकिन महंगा है। और अभी तो बहुत अच्छा है, अभी ये हाउसिंग में बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ था, लो कॉस्ट हाउसिंग। तो आदमी बोलते हैं कि कितना भी पैसा खर्चा होने दो, मैं लो कॉस्ट हाउसिंग बनाना चाहूंगा। तो इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली कि जहां हम अनाज बेचना पाप, और कह रहे हैं हम भारतीय कृषि की बात कर रहे हैं। आपने ये गौर किया है कि ये सारी चीजों में हमारे यहाँ जितने ट्रेड्स हुआ करते, जितने ऑक्यूपेशन होते, तो उतनी जातियां होती थी।
लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, ये तो है 1 लाख के आसपास जातियाँ होती थी। भिक्षावृत्ति अकेले की ही 7,000 के आसपास उपजातियाँ होती थी, जो भिक्षावृत्ति मैं बात किया अभी आपको। लेकिन हमारे यहाँ पे वैद्यों की कोई जाति नहीं हुई कभी। क्यों? क्योंकि वैद्यगिरी को हमेशा एक सर्विस माना गया, एक ऑक्यूपेशन, धंधा, रोजगार ऐसा माना ही नहीं गया। हर जगह पे हर जाति का आदमी वैद्य बन सकता है। बाकी आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, लोहार कुम्हार नहीं बन सकता, कुम्हार सुनार नहीं बन सकता, ये आप दूसरे भी इनको, लेकिन हर जाति का आदमी वैद्य बन सकता है। और वो इसीलिए वैद्य बन सकता है क्योंकि ये सर्विस है। वो अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी कर रहा है, साथ में साथ ये काम भी कर रहा है, और उसके बदले में सर्विस है, इसलिए उसको वो उसका ऑक्यूपेशन नहीं है वो। लेकिन आज जिसको हम आयुर्वेद के नाम पे, भारतीय चिकित्सा पद्धति के नाम पे आयुर्वेद जिसको लेके चल रहे हैं, आज वो एलोपैथी से ज़्यादा महंगी हो रखी है। तो इकोनॉमिक्स कैसे गड़बड़ होती है। ऑर्गेनिक मिलेट्स पे हम लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं कि मिलेट्स में ये इतने तरह के मिलेट्स आ गए, मिलेट बेस्ड भोजन होना चाहिए, हम सब लोग भी कॉन्शियस है उस वाले में। लेकिन ये देखना चाहिए कि कभी ये आम आदमी का भोजन होता था, आम आदमी से ये कैसे प्रीमियम बन गया। ये जो गेहूं नहीं खाते थे, इतना आम था कि गेहूं वॉज अ प्रीमियम, मिलेट्स और उससे भी नीचे लेवल का स्थान हुआ करता था, वो आज प्रीमियम पे हो गया है। तो हर सारी चीज जो आम लोगों के लिए उपलब्ध हुआ करती थी, वो अब क्या हो गई, प्रीमियम होके लग्जरी आइटम्स बन गए। वाय? केवल इकोनॉमिक्स की गड़बड़ी के कारण। जो चीजें सबको सहज उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो हमने गड़बड़ी पूरी कर रखी, उसके सिस्टम ऐसे बना के रख दिए कि अब वो आम लोगों से गए। कपड़े, क्लोथ की बात करें, हम लोग बात कर रहे थे अभी उस दिन कुमार जी के साथ में कि कॉटन का कपड़ा कौन पहनता था पहले। अभी कुछ समय पहले तक भी, 40 साल 50 साल पहले तक कॉटन लार्जली वॉज वो पहनी जाती थी। ये जो हमारे आम जो लोग हुआ करते थे उनके द्वारा, सारे कारीगर, सारे किसान, सारे ये सारी चीज़ें ये लोग पहना करते थे। आज उधर से उनके लिए अब मिल नहीं रहा कि अपने खुद के बनाए कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं जुलाहे, इस लेवल पे उसकी मार्केटिंग और वो सारा कुछ हो रहा है। तो ये इकोनॉमिक्स की गड़बड़ी हो जाने से कहाँ से क्या चीज़ हो जाती है, ये हमको देखना होगा। तो मेरे ख्याल से समय हो रहा होगा, तो आई वुड जस्ट ओनली से कि ये इकोनॉमिक्स को हम लोग, विज्ञान तो महत्व की चीज़ है ही, कला भी महत्व की चीज़ है, ये दोनों चीज़ों को हम लोग कुछ ना कुछ लेवल पे पकड़ रहे हैं विद्या क्षेत्र में। और लेकिन हमको यदि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करना है टू रिस्टोर भारतीय व्यवस्था, टू गो टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, इवन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उसको हमको पकड़ना है, तो उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम लोग नहीं पकड़ेंगे तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ी होगी। ये अच्छी चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी इसको पकड़ के रखे हुए हैं, जैसे फीस वाला कॉन्सेप्ट है, भिक्षावृत्ति वाला कॉन्सेप्ट है। आप लोग भी भिक्षा के लिए बच्चे लोग अब जाना शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, हाँ, हर साल जाते हैं। तो ये जो जिस तरह के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर सम ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स कि जहाँ इकोनॉमिक्स को उसकी सही पोजीशन में हम लोग बिठा पा रहे हैं। फिर से उसको ही आगे ये चीज़ करना है, तो इस एस्पेक्ट को बहुत मजबूती से पकड़ना होगा। और ये हम कुछ कर पाते हैं तो ये हमारे लिए तो ठीक होगा ही होगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए, लेकिन ये पूरे इंडिया में भी बहुत ज़बरदस्त रोल मॉडल के रूप में निकल सकता है। तो आई वुड जस्ट थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आप लोग इस सब दिशा में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।